Hello everyone. Today we will discuss the important topic dipole moment. Dipole moment, which is represented by mu. What is dipole moment? Dipole moment is defined as the product of magnitude of negative or positive charge and the distance between the centers of positive and negative charges is called dipole moment and it is denoted by mu. Or we can write this definition in term of like this: mu is equal to q into d. Here q is what? Q is the charge and d is what? D is the distance between the centers of positive and negative charge. As you can see in the figure here, A and the B is the atom and the B is the another atom. It acquire the positive charge and then it acquire the negative charge. It means it is electronegative and it is a electropositive. The distance between A and a B, the distance which is represented by D. D is the distance between the charge of positive and negative, center of charge and positive negative. So dipole moment, which is represented mu, is the product of the charge which includes the positive and the negative into D. D is the distance between the center of positive and negative charge. One thing is which is very important, you should know which molecules show the dipole moment. Only polar molecules show dipole moment. This is very important, you should know. Only polar molecules show the dipole moment. Now charge, which is represented by Q, is order of 10 to the power minus 10 ESU. What is ESU? ESU is electrostatic unit. U is the electrostatic unit. And D is what? D is the, we can say that, internuclear distance is order of 10 to the power minus 8 centimeter. Then we can see that mu is equal to, which is the product of Q into D. Here the charge of Q is order of 10 to the minus 10 ESU. So we can write that mu is equal to 10 to the power minus 10 ESU into, then what? Distance between the positive and negative charge. The value of the distance is 10 to the power minus 8 centimeter. Then further, from calculating this value, we get the 10 to the minus 18 ESU centimeter. आपको पता है, this is very important, you should know what is ESU. ESU is electrostatic unit.
and the another thing is the value of this one, which is 10 to minus 18 ESU centimeter. This quantity called 1 d by which is represented by capital D, This is also the very important 1 mark में आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन डी बाय. ठीक है, डिफाइन डी बाय. सो वी कैन राइट हेयर दैट 1 डी बाय इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. 1 SU डी बाय सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें इन SI यूनिट, इन SI यूनिट में 1 ESU इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 3.335 इंटू 10 पर माइनस 10 C. Here C is what? C is the coulomb. आप सुना होगा ना coulomb, which is coulomb. और हम ये बोल सकते हैं C is the unit of charge. ये क्या है, चार्ज की यूनिट है, which is क्या है आपकी coulomb. और आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to minus 2 मीटर, और वी कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देन 1 d by is equal to what? 1 into 10 to power minus 18 into 3 into 3, 5 into 10 to minus 10 coulomb into 10 to minus 2 meter. From calculating this value, we get this 1 d by is equal to 3.335 into 10 की पावर माइनस 30 cm. एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हो गया, सेंटीमीटर, cm हो गया. नो, यहाँ पे c क्या है, c है बेटा यहाँ पे कूलम, और m क्या है यहाँ पे मीटर. ठीक है, तो 1 d बाई की यूनिट क्या आ जाएगी, किस में आएगी, कूलम मीटर में आ जाएगी. तो 1 d बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 d बाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 10 के ऊपर माइनस 30 कूलम मीटर. ओके, नाउ फर्दर अगर हम बात करते हैं फर्दर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग डाइपोल मूवमेंट इज डाइपोल मूवमेंट and molecular structure. तो नंबर वन आता है आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपको पता है, जिससे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्या है, HCl है. फॉर एग्जांपल क्या है, HCl. ठीक है, आपको पता है HCl. क्लोरीन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच अक्वायर द नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है वो क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसके ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे. आप एक चीज़ लिखना पहले, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It has magnitude as well as direction. आपने दो क्वांटिटी पढ़ी हुई है, एक स्केलर और एक वेक्टर. जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन होता है. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड
by an arrow with its tail at the positive center and head pointing towards the negative end. ठीक है, हमने क्या बताया, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है. अगर मुझे डायटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरह से हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द एरो. ठीक है, ये क्या है, आपका हेड है और ये क्या है, आपका टेल है. ठीक है, और ये जो टेल है वो किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ, और इसका जो ये हेड है वो किसकी तरफ होगा, आपका नेगेटिव की तरफ. अगर हम इसी एग्जाम्पल में अगर हम एरो बनाएं तो कैसे बनेगा एरो, इस तरह से. जो हेड आएगा वो हेड किसकी तरफ आएगा, आपका नेगेटिव की तरफ आएगा. ठीक है, और टेल किसकी तरफ आएगा, आपका पॉजिटिव की तरफ आएगा. ओके, तो आप यहाँ से हम लिख सकते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है ना HCl का डायपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू 1.07 डी बाई डी क्या है यहाँ पे, डी बाई हमने पढ़ लिया. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हो, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इक्वल होता है किसके, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड 1.07 डी. ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट. अब मॉलिक्यूलर कौन है, HCl ही तो है. ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है HCl का. ठीक है, ये HCl की ही बात कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर, इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इक्वल है किसका, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड विच इज़ 1.07 डी बाई. ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ याद रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between the bonded atoms, greater is the dipole moment. ठीक है, आपको कैसे पता करना है, जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉन्डेड एटम, उतना ही क्या होगा, ग्रेटर इज़ द डायपोल मोमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर, ठीक है, जैसे आपका क्या HF हो गया, HCl हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या हो जाएगा, आयोडीन. अब आपको पता है यहाँ पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो किसकी सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की. तो लगा दो आप. ठीक है, अगर मैं डायपोल मोमेंट लिखूँ, डायपोल मोमेंट, तो इसका कितना है 1.78 डी बाई, इसका है 1.07 डी बाई, इसका है 0.79 डी बाई, इसका है 0.38 डी बाई. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, अगर मैं बात करूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लिखना एक चीज़ लिखो,
polyatomic molecule has more than one polar bond, the dipole moment किसके इक्वल होगा? डाइपोल मोमेंट होगा आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स, इससे पहले हमने बात की थी किसकी? डायटोमिक मॉलिक्यूल की। वहाँ पे क्या था बेटा? वहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड थे ही नहीं, एक ही बॉन्ड था प्रेजेंट था, तो हम उसी को कंसिडर कर रहे थे। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है वाटर, NH3, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हैं? ये है एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। अगर मुझे अब अब इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल लूँगी मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का? तो अब क्या करना है आपको? लिखना है एक चीज़, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस resultant dipole moment not only depends upon the values of the individual dipole moments of the bonds but also on their arrangements in space, ठीक है। वो क्या कह रहा है? जो डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जितने भी यहाँ पे बॉन्ड आपके प्रेजेंट है सबका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा जब हम क्या निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल को। नंबर 1 आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। वाटर का आप ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? OHH। सबसे पहले तो आपको एरो किस तरह से लगाना आपको पता है। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक बॉन्ड तो ये प्रेजेंट है, और पोलर बॉन्ड एक ये प्रेजेंट है, और दूसरा पोलर बॉन्ड ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एरो हम लगा देते हैं। अब आपको पता है हेड किसकी तरफ आएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ, और टेल किसकी तरफ आएगा? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और दूसरा पोलर बॉन्ड ये वाला है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर से आप एरो इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 1.84 g/, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल स्टडी करती हूँ विच इज़ NH3, दैट इज़ अमोनिया। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ये क्या है? H, यहाँ पे H, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? रिटर्न नेगेटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट का एरो लगा दो। जो ये एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से जा रही है? टेल से हेड की तरफ जा रही है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होगा, पोलर तो है ही। म्यू इज इक्वल टू 1.47 d/, तो उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1.47। उसके बाद आपका एक एग्जाम्पल और स्टडी कर लेते हैं,
वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस वाले मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास 2 CO बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, 2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, 2 पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि इट हैज़ 2 C डबल बॉन्ड O पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। इसके पास क्या है, दोनों पोलर बॉन्ड्स हैं। अब बात करते हैं हम एरो की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव, फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आप एरो लगा सकते हैं, इस तरह से जाएगा और इसका आपका इस तरह से जाएगा, हेड टू टेल। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है ना, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती। अब ये हुआ कैसे, अब भाई इसमें तो पहले में तो वैल्यू आ रही थी, इसमें क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। इसी के जैसे सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं आपके, सिमिलर एग्जाम्पल है आपका जैसे CS2, ठीक है। CS2 हो गया, BF2 हो गया, ठीक है, जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं। इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्यों होता है, लिखो एक चीज़ लिखिए हो ना यहाँ पे, इस 0 होता है क्यों, बिकॉज यहाँ लिखना है बिकॉज equal magnitude but their directions are opposite to each, their directions are opposite to each direction to opposite to each other, and hence cancel out, ठीक है। तो इनमें क्या है, इक्वल तो मैग्नीट्यूड है और इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ये एरो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो जिसकी वजह से एक दूसरे मतलब डाइपोल मोमेंट तो होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, लेकिन वो उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट क्या आता है आपका, 0 आता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग। I hope you like my work, so please like, share, subscribe. Thank you.